सो ये वीडियो होने वाला है अबाउट क्यों मैं फ्रीलांसिंग को छोड़ के अभी जॉब पे जाने वाला हूँ और जॉब पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों मैं अभी फ्रीलांसिंग को क्विट कर रहा हूँ या पॉज़ कर रहा हूँ और फ्रीलांसिंग जॉब की तरफ जा रहा हूँ। तो मेरे पास कोई अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि लाइक मैं किस किस डायरेक्शन में लाइक किस तरह से ये वीडियो आगे जाएगा। बट मेरे पास थोड़ा बहुत आइडिया है कि इन चीज़ों पे बात करनी है। तो एक जो चीज़ जो मुझे बात करनी है कि क्यों मैं इसके पहले ऑलरेडी एक जॉब कर रहा था, उसको छोड़ के उसको क्विट करके मैं फ्रीलांसिंग करने के लिए आया था। और उसके पीछे लाइक बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन एक सिंपल रीज़न मैं तुमको ये बताऊंगा कि मुझे लगा था दैट I'll come up at my home and I'll do the work, get clients, and everything will be sorted out, everything will be great. Because you see, like जिनके पास जिनके पास तुमसे भी थोड़ी तुम्हारे लेवल की या तुम्हारे अराउंड की एडिटिंग स्किल्स है, वो बंदे अगर फ्रीलांसिंग में अच्छा खासा कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट यू। एंड आई थिंक the problem is nobody uh, talks about this particular thing, that freelancing is not just about your skills, your editing skills, your creativity, and basically your skills. It's it's not just about your skills, it's much more than that. It's when you are working as a freelancer, you are running a small business. And to run a small business as a freelancer is just a tag. In reality, you are actually running a small business. So you need a marketing place, a marketing platform, a platform where you can get your clients, or method like outreaching. Particularly, that's easiest thing. Sorry for 1 minute. Yes. So as a freelancer, you are running your own business, your own editing business. So it takes everything like us. A business takes marketing, client management, and everything you see. And when when I got into it, I realized that it's fucking hard. And this was one thing, this was one topic that I wanted to clear you out, that uh, freelancing is not just about your editing skills. Freelancing is much more than that. First of all, it's a small business. It's like a small business. You are running like a small business. And other than that, yes, your editing skills matters. Other than that, uh, the foundation, I call it, in foundation I consider, uh, in a base, you can say a base, I consider uh, your place, your room. Like you have a closed room where you can sit, work. Nobody is going to come and disturb you and mess with your focus. That's one thing. And the second thing is there is a really important thing that I'm going to I'll talk about later in the video, uh, in a short time. uh, right now I'm talking about, I should uh, right now I have this in my mind that yes, eating food, uh, there is two things in food, like you are making food or someone else, like your mom or someone else is making food for you. So you have food safety, place safety, like your food problem is solved.
your place problem is solved, like you have a room. And in like हमारे यहाँ हम लोग जैसे बोलते हैं कि छत है तुम्हारे पास, तो उसका टेंशन लेने की तुमको ज़रूरत नहीं है, वो वाली बात आ जाती है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये, आई थिंक मुझे इसके बारे में बात कर लेना चाहिए कि हाँ, तुम्हारा लैपटॉप वगैरह डिसेंट 35,000 या 40,000 इसके अंडर में रेंज में भी है, तब भी कर ले जाओगे। उतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, जब यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट तुम कर ले जाओगे। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाहूँगा वो है योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। काइंड ऑफ हैविंग अ पर्सन like your father, mother or someone else, mainly your father, mother, having a person जो कि तुम्हारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एस्टेब्लिश कर रहा है। तुम खुद भी हो सकते हो, बट अभी तुम उस हालत में नहीं हो, या मैं कह लूँ अभी मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं खुद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर कर पाऊँ। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने, इसका मेरा मतलब ये है कि दैट तुम्हारे पास फूड के लिए, तुम्हारे फूड सर्वाइवल के लिए, फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास लाइक इतना इतना फाइनेंशियल वो बैकग्राउंड और सपोर्ट है तुम्हारे पास कि तुम 1-2 साल का फूड लाइक फूड प्रॉब्लम 1-2 साल के लिए तुमको उसके बारे में टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 साल के लिए एक ये चीज़ हो गई, या 3-4 साल के लिए मान लो, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई तुम्हारी, 1-2 साल आई थिंक इनफ है। दूसरी चीज़ हो गई तुम्हारी हाँ, क्योंकि कोई कोई है जो तुम्हारा फाइनेंशियल बैकबोन है, जो तुमको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, या तुम्हारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, कहीं से भी हो सकता है। एंड उसमें तुम्हारा का पूरा सर्वाइवल आ जाएगा, पूरा एवरीथिंग, तुम्हारा ट्रैवल से लेके मतलब हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ के लिए, फंडामेंटल चीज़ के लिए, नीड के लिए तुम्हारे अगर पैसे खर्च होने वाले हैं, तो उसका एक बैकएंड, उसका एक तुम्हारे पास बेसिक फाइनेंशियल सपोर्ट है। कोई है जो, या कुछ है जो सपोर्ट कर देगा। 1-2 महीने के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए, या फिर 3-4 सालों के लिए। उतना है कि 2-3 या 4 सालों तक चल जाएगा, या कुछ है जो कि पैसा आता रहेगा। कुछ भी, तुम समझ गए कि फाइनेंशियल वो पक्का है। मेरे केस में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। मेरा केस ऐसा है दैट आई डोंट इवन नो कि कल या आज रात को मैं क्या खाऊंगा, जो कि मैं अभी सॉर्ट आउट करके आया हूँ अभी अभी, तो उसका टेंशन नहीं है। बट आई डोंट नो कि 1 हफ्ते बाद, या फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, आई डोंट नो व्हाट आई विल ईट, या फिर कैसे मैं खाऊंगा। अब खाने की प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। उसके ऊपर से आई ऑलरेडी हैव दिस प्रॉब्लम वेयर आई डोंट हैव अ रूम। एक बड़ा सा हॉल है मेरे घर में, एंड वहाँ कोई भी आ जा सकता है, लाइक सब कुछ खुला खुला। देर इज़ नो रूम इन माई हाउस। तो ऐसा है कि कोई भी आ जा सकता है, एंड ये तुम्हारे फोकस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और ये सेम चीज़ आई थिंक उनके लिए भी है कि लोग तुमको बोलते हैं कि तुम्हें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या वाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन feels really hard for people like low middle class or poor people, because तुम अपना फोकस इंश्योर कर ही नहीं सकते। फोकस तुम तब इंश्योर कर पाओगे और फोकसफुली तुम तब काम कर पाओगे जब तुम्हारी बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। एक कमरा हो गया तुम्हारा, फूड सेफ्टी हो गया तुम्हारा, सर्वाइवल का जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है तुम्हारा वो सॉर्ट आउट हो चुका है, ये सॉर्ट आउट हो गया तुम्हारा। एंड उसके बाद एक तो
हाँ, अगर बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी है, देन फिर एक आता है कि ओके, अभी बंदा फोकसफुली काम करेगा, लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि फोकसफुली तुम काम कर भी पाओगे। बिकॉज उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट या फैमिली एनवायरनमेंट, अगर तुम घर पे काम कर रहे हो तो वो कैसा है, क्या तुम फोकसफुली काम कर सकते हो, क्या तुम फोकसफुली काम कर भी पाओगे कि नहीं। जैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड और मेरा फैमिली डायनामिक्स इक्वेशन ऐसा है कि मैं नहीं काम कर पाऊँगा। उसमें भी अभी एक अलग ही डिबेट है दैट इफ़ यू हैव 5 to 10 lakhs in your account, then you don't give a fuck about anything। तुमको किसी बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल बैकबोन अपने आप में इतना ज़्यादा तुमको कंट्रोल दे देता है, इतना ज़्यादा तुमको कॉन्फिडेंस दे देता है टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन रूल्स। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम यहाँ से निकल के कहीं और रूम लेके वहाँ पे रह के काम वगैरह कर सकते हो अपना, या फिर तुम अपने घर से भी काम कर सकते हो, वहाँ पे भी तुमको ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होगी, बिकॉज तुम घर वालों का सबका फाइनेंशियल वो सपोर्ट या बैकबोन सपोर्ट इंश्योर कर दोगे, तो वहाँ पे तुमको घर वाले ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। आई होप कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। बाकी मेरा ऐसा है कि हाँ, मैं कंट्रोल कर लूँगा। अगर मेरे पास 5-10 लैक्स या फिर 10 लैक्स के अराउंड पैसा पड़ा हुआ है मेरे अकाउंट में, एक्चुअल 10 लैक्स के अराउंड एफडीज या फिर सेविंग्स में मेरे पास अकाउंट पैसा पड़ा हुआ है, देन आई डोंट फकिंग केयर कि कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में और ये सब। अभी हाँ, मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरे घर में सिचुएशन ऐसी नहीं है दैट, जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बोला हुआ है कि मैं आराम से अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, बैठ के, जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पे मुझे कोई जज ना कर रहे, देख ना रहा हो कि तुम क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। उस केस में लाइक वॉइस रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत काफ़ी इजी है, काफ़ी कन्वीनियंट है देन वीडियो को रिकॉर्ड करना। उसके ऊपर से मेरे फ़ोन का फ्रंट कैमरा चल नहीं रहा है, नहीं तो शायद मैं सेल्फ़ी रिकॉर्ड कर लेता। अभी के लिए तो यही चलाना पड़ेगा। सो मैं बात कर रहा था कि लाइक हाँ, कि कोई पर्सन है कि तुम्हारा फाइनेंशियल बैकबोन अगर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे पास अकाउंट में अच्छा खासे पैसे पड़े हुए हैं, देन यू डोंट गिव अ फक अबाउट कि कौन क्या सोच रहा है। तुम अपनी बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम, सर्वाइवल प्रॉब्लम्स आराम से अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज़ लाइक तुम कहीं पे रूम लेके रह सकते हो, या फिर तुम बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, एक्सेस कर सकते हो तुम बहुत सारे ऑप्शंस। तो वो एक अच्छी बात है, और ये सबसे बढ़िया बात होती है फाइनेंशियल बैकबोन की, इसलिए और सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मैं ज़्यादा द वीडियो का टॉपिक ये था दैट क्यों मैं फ्रीलांसिंग से शिफ्ट हो रहा हूँ, एक जॉब में जा रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न आई थिंक मैं यही कहूँगा, फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होना। क्योंकि उससे तुम लिटरली, अगर मेरे फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होते होते तो मैं आराम से घर पे रुक के मेरा अपना जो आधा बचा हुआ घर है इसको कंप्लीट करवाता, एंड ठीक ठाक से मेरा अपना एक डिसेंट सा रूम रेडी करवा लेता। थोड़े बहुत पैसे लगा के, अगर तुम्हारे पास 10-10 लैक्स के अराउंड पैसे पड़े हुए, देन हु केयर्स कि ना, तो तुम 1-2 लाख में आराम से अपना घर रेडी हो जाता है, एंड आराम से ऑलरेडी ऑलरेडी आधा बचा हुआ है, और 1-2 लाख लगा के इतना तो हो जाता दैट यू कैन नाउ स्टार्ट यूजिंग इट। अभी के लिए ऐसी कंडीशन नहीं है दैट आई कैन यूज़ इट फॉर वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, नथिंग। तो बेसिकली बोलते हैं ना कि छत नहीं है तुम्हारे पास, तो वैसी वाली हालत है यहाँ पे, जो कि एक
एक प्राइमरी जो हाउस है, वो ऐसा नहीं है कि तुम प्रोडक्टिवली काम कर पाओ। जो सेकेंडरी हाउस है उसमें अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है एंड उसको करवाना पड़ेगा तुमको। उसके बाद तुम सोच सकते हो कि तुमको यहाँ पे शिफ्ट हो करके काम करना है कि नहीं करना है, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे फाइनेंशियल स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने स्ट्रांग होना दैट लाइक तुम्हारे पास 5-10 लैक्स पड़े हुए हैं एंड यू डोंट केयर अबाउट लाइक आई मीन तुमको अगर कल के कल कहीं निकल के जाना है और कोई प्रॉब्लम है कि कहीं वो निकल के जाना है और कहीं दूसरी जगह जा कर के काम करना है, देन लाइक तुम्हारा अपना काम करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, तो वो तुम कर सकते हो। वो तभी हो सकता है जब तुम्हारा फाइनेंस स्ट्रांग है। तो इसलिए मेरा फाइनेंशियल वाला प्रॉब्लम मैं बोलूँगा। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल तुम जो देखते हो सक्सेसफुल या फिर फेमस पीपल, स्पेशली वीडियो एडिटिंग और एक क्रिएटिव फील्ड में, उनका बेसिक फंडामेंटल शायद यही रहता है दैट उनके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग्स हैं ऑलरेडी। सो दे उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के बारे में डिस्कस इवन सोचने की भी कि अच्छा ये चीज़ भी हो सकती है क्या? अच्छा ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं क्या कि किसी बंदे के पास खाने को फूड नहीं है, रहने को प्लेस नहीं है। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? फ़ोकस की का इश्यू हो सकता है लाइक उसके ऊपर से और काम करना और ग्रो करना, वो अपने आप में एक लाइक हेडेक बोल लो तुम अपना कि बेसिक फंडामेंटल्स तुमको प्रॉब्लम दे रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं एंड उसके ऊपर से तुम्हारा जो तुमको काम भी करना है और काम का जो प्रेशर होता है वो अलग से, ऊपर से क्लाइंट का प्रेशर और बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर, तो मुझसे नहीं हो पाया। एंड आई थिंक बेस्ट यही है कि मेरे लिए बेस्ट यही है दैट आई शुड गो इनटू अ जॉब, अच्छे खासे पैसे सेव करूँ, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट सब करूँ, अ, और साइड में फ्रीलांसिंग चलानी है तो चलाओ या फिर अपना खुद का पर्सनल ब्रांडिंग का तुमको थोड़ा बहुत पर्सनल ब्रांडिंग पे तुमको काम करना है तो तुम वो करो। बिकॉज़ पर्सनल ब्रांडिंग इज़ ऑल्सो वन थिंग, ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट थिंग। बिकॉज़ तुमको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? पर्सनल ब्रांड से ही मिलेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग से ही मिलेंगे। दैट पीपल नो दैट यू आर अ एडिटर एंड यू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड तुम्हारा पर्सनल ब्रांड होगा तभी लाइक तुमको काम अच्छा अच्छा काम और बेसिकली अच्छा हाई वैल्यू वाला काम मिलेगा तुमको, अच्छा काम मिलेगा, अच्छे वीडियोज़ एडिट करने को मिलेंगे अगर तुम्हारे पास पर्सनल ब्रांड होगा तो। तो ये एक बात है पर्सनल ब्रांड की। अ, जॉब करते-करते साइड में तुम अपने पर्सनल ब्रांड पे भी काम कर सकते हो, तो एक वो बात है। बाकी मुझे जॉब पे जाना पड़ रहा है और जाना ही पड़ेगा। उसके साथ-साथ मैं अपनी फ्रीलांसिंग पे और पर्सनल ब्रांड पे काम कर सकता हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड दूसरी जो चीज़ थी मेरी, अ, एक चीज़ थी जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या चीज़ थी। तो तुमको हाँ, मैंने बेसिक जो मेरी स्टोरी थी वो मैंने तुमको बता दिया। मेरी कंडीशन जो थी है, वो मैंने तुमको बता दिया। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैंने गलती क्या करी थी। सबसे पहले तो मैंने जो जॉब क्विट करा था, वहाँ पे ही सबसे बड़ी गलती ये हुई थी दैट क्विटिंग अ जॉब इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम तब है व्हेन यू डोंट हैव योर फाइनेंशियल सपोर्ट, योर फाइनेंशियल बैकबोन, व्हेन यू डोंट हैव 5-10 लैक्स और तुम्हारे हिसाब से तुम जहाँ भी रहते हो 10-20 लैक्स, 20-30 लैक्स, जितना भी तुमको ज़रूरत है, दैट्स वन थिंग। वो तुम्हारे पास नहीं था। वो नहीं भी है तब भी इट्स ओके। आई मीन डिसेंट मनी है तुम्हारे पास, इट्स ओके। बट आई मीन ये डिबेटेबल है बट मेरे लिए तो ऐसा है कि होना ही चाहिए अच्छा खासा पैसा। उसके बाद ये चीज़ आती है दैट यू हैव अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का ये मतलब है दैट यू हैव यू हैव ऑलरेडी वर्कड विथ 5 मिनिमम 5 क्लाइंट्स
एंड यू ऑलरेडी हैव 2 to 3 क्लाइंट्स, तुम 5 क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हो एंड तुम ऑलरेडी अभी करंटली तुम्हारे पास 2 या 3 क्लाइंट्स हैं जिनके साथ काम तुम कर रहे हो। अभी मैं इसके पीछे का तुमको लॉजिक बताता हूँ। जब तुम 5 क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हो, दैट मीन्स यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू गेट क्लाइंट्स, दैट्स वन थिंग। हाउ टू गेट क्लाइंट्स और हाउ टू एक्वायर क्लाइंट्स, क्लाइंट एक्विजिशन अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ब्रो। और तुम एक्चुअल में जब गेम में एंटर करते हो तब तुम रियलाइज करते हो दैट हाउ मच फकिंग हार्ड इट इज टू इवन गेट अ सिंगल फकिंग क्लाइंट। अच्छे क्लाइंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्लाइंट लाने की, एक सिंगल क्लाइंट लाने के पीछे क्या सफरिंग होती है, क्या काइंड ऑफ स्ट्रगल होता है, वो तुम एक्चुअली में गेम में एंटर करने के बाद तुमको समझ आता है कि ओ इट्स फकिंग थिंग, आई मीन इट्स नॉट फकिंग लाइक सिंपल थिंग। तो वो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है 5 क्लाइंट्स लेके आने का, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में मैं अभी बात करने जाऊँगा तो 1-2 घंटा शायद या उससे भी ज़्यादा निकल जाएगा। उतना ज़्यादा डीप हो जाता है वो, तो तुमको वो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, बट वो एक डीप चीज़ है। देन फिर वो आता है कि 5 क्लाइंट्स के साथ या 5 मिनिमम 5 क्लाइंट्स के साथ अगर तुमने काम किया है तो यू नो कि डेडलाइन्स कैसे मेंटेन करना है और लाइक डेडलाइन स्पीड कैसे करना है, क्लाइंट्स को मैनेज कैसे करना है, क्लाइंट्स के साथ बात करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो एक बात है ना, किसी ने बात बोली है ये कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कोई तो बंदा है जिसने ये बात बोली हुई है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एंड ये सही बात है ब्रो, ये एकदम ट्रू बात है दैट आई आई एम फकिंग लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ था दैट आई गॉट अ क्लाइंट, एकदम फ्री क्लाइंट थी, लाइक उसको मुझे काम करके देना था। सबसे पहले तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मैं किस चीज़ में जा रहा हूँ। मैंने पहले तो एडिटिंग को थोड़ा साइड करा था एंड यूट्यूब ग्रोथ टाइप का मैं चीज़ स्किल बिल्ड कर रहा था, लाइक काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क भी बिल्ड कर रहा था। एंड उसमें आई डोंट नो कि मैं किस डायरेक्शन में चला गया था। और मेरे पहले ही कन्वर्सेशन में मुझे इतना बड़ा सा झटका लगा दैट आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड, लाइक मैं प्रिपेयर नहीं था ब्रो दैट कि इतना वर्स्ट चीज़ें भी हो सकती है, लाइक ऐसी-ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एंड वो वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वाला तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व हो चुका होगा व्हेन यू हैव ऑलरेडी वर्क्ड विद मिनिमम 5 क्लाइंट्स, 5 पीपल, 5 क्लाइंट्स। क्योंकि बहुत सारी वर्स्ट चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी होंगी व्हेन यू हैव ऑलरेडी वर्क्ड विद 5 क्लाइंट्स। बहुत सारी लाइक इस जर्नी में, इस प्रोसेस में बहुत सारी वर्स्ट चीज़ें ऑलरेडी तुम्हारे पास हो चुकी होंगी। एंड अगर तुम बात कर रहे हो दैट योर गोल इज़ योर मेन गोल इज़ टू सेव मिनिमम और 5 lakhs 10 lakhs, तो इस पूरी जर्नी में 5 क्लाइंट्स इज़ लाइक बेसिक एंड बे मिनिमम, लाइक उससे ज़्यादा ही क्लाइंट्स के साथ तुम काम कर चुके होगे। तो वो तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, अगर नहीं भी है तब भी मिनिमम 5-10 क्लाइंट्स के साथ तुमने काम कर रखा है। एंड वो कैसे भी हो सकता है बट मिनिमम तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 to 10 क्लाइंट्स या फिर 5 to 15 क्लाइंट्स के साथ काम करने का, और उनके साथ अच्छे खासे वीडियोस क्रिएट करने का एक्सपीरियंस। तो वहाँ से फिर तुमको वो एक कॉन्फिडेंस आता है और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी मिलता है तुमको कि पेमेंट्स कैसे उठाने होते हैं, पेमेंट्स में क्या क्या दिक्कतें आती है। वर्स्ट चीज़ है बहुत ज़्यादा, आई मीन इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर तुम कह लो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और ये वर्स्ट चीज़ें जो होती हैं उनको हैंडल करना, काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस हैंडल करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ऑब्जेक्शंस एवरी सिंगल फकिंग स्टेप पे तुमको ऑब्जेक्शंस मिलते हैं। एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस इज इट्स ऑल अबाउट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर एंड
And broken freelancer or failed freelancer, it's just uh, a successful freelancer knows how to handle objections, and a broken or failed a freelancer doesn't know about it and doesn't have the experience in it. यही डिफरेंस है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो ये तुमको मैंने बता दिया। तो इसको मैं बोलूँगा प्रूफ ऑफ वर्क। इसको लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। तो प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब ही ये है दैट तुम्हारे पास प्रूफ है तुम्हारे काम का। इट्स नॉट लाइक पोर्टफोलियो, लाइक नॉट नॉट प्रूफ ऑफ वर्क, इट्स प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ये जो तुम्हारा फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट है, इसका प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम सस्टेन कर सकते हो। लाइक जितना भी है, लाइक मान लो तुम 30K या फिर 50K या फिर 1 लाख, जितना भी अमाउंट है उसको तुम सस्टेन कर सकते हो फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक 6 मंथ्स या 12 मंथ्स या 3 मंथ्स काइंड ऑफ तुमने कर रखा है। उसके बाद अगर तुम छोड़ना चाहो, क्योंकि अगर तुम जॉब क्विट भी कर देते हो देन नथिंग मैटर्स, लाइक तुम केयर नहीं करोगे बिकॉज तुम्हारा ऑलरेडी फाइनेंशियल बैकबोन इतना है। अगर तुमने 6 मंथ तक एक्स वाई जेड को सस्टेन कर रखा है, या फिर XYZ को क्लाइंट्स को तुमने सस्टेन कर रखा है एक मंथ, लाइक XYZ टाइम के लिए, लाइक 6 मंथ्स या 12 मंथ्स या मोर देन 3 मंथ्स, मैं बोलूँगा कि 6 मंथ्स या 12 मंथ्स कम से कम होना ही चाहिए। तो फिर अगर तुम सोच भी रहे हो कि जॉब क्विट करने का, जो कि तुमको फिर भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा फाइनेंशियल बैकबोन रेडी होना, जो तुम्हारा फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्ट्रांग होना। अगर वो नहीं है तो फिर तुमको फिर से दिक्कत आएंगी। तो जॉब क्विट करना, जॉब काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी की तरह है। तुम क्विट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लाइक अगर अगर तुमको एग्जैक्टली आइडिया है कि जो भी वर्स्ट चीज़ें आने वाली है होने वाली है उनको कैसे हैंडल करना है आगे जाके, देन वो तुम कर सकते हो। तो एक ये दिक्कत हो गई थी अ, मेरे मेरे केस में। और एक दूसरी चीज़, और हाँ, मैं तुमको बताना चाह रहा था, यही मेन चीज़ है जिसके बारे में, लाइक यही फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनके बारे में लाइक लोग तुमको बात करते हुए नहीं मिलेंगे। लोग बातें कर लेंगे कि क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, प्रोस्पेक्ट्स कैसे लाने हैं, लिस्ट्स कैसे निकालनी है, जो कि फिर भी बकवास लगती है मुझे, क्योंकि सच में बकवास लगती है मुझे। बट स्टिल आई मीन फालतू की बकवासें तुमको मिल जाएंगी इंटरनेट पे, बट जो एकदम कोर बेसिक फंडामेंटल लेवल की चीज़ें हैं वो तुमको नहीं मिलेंगी, जो कि मैंने भी तुमको एक स्ट्रक्चर्ड वे में शेयर नहीं करी है। मैंने तुमको बस सिर्फ बताया है अराउंड कि अच्छा ये टॉपिक्स होते हैं क्लाइंट्स, मतलब आई मीन ओवरऑल तुमको थोड़ा आइडिया दिया है। इसके ऊपर आई थिंक मैं आगे आने वाले वीडियोस में लाइक बात करूँगा, बट अभी के लिए तो मेरे पास ये एक ओवरऑल ओवरव्यू काइंड ऑफ चीज़ था जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ कि मैं क्यों फ्रीलांसिंग से स्विच कर रहा हूँ ऑन अ जॉब। एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी मेरे पास और कुछ है बात करने को इसके अलावा। आई डोंट थिंक सो, यही था। आई मीन अगर ये चीज़ें सॉर्ट आउट हैं तुम्हारी, देन फिर तुम कर लोगे आराम से। अगर ये फंडामेंटल तुम्हारे हिले हुए हैं देन फिर तुम नहीं कर पाओगे। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर रहा था वो ये है कि बिकॉज़ तुम अपने घर पे हो, बिकॉज़ तुम्हारे पास कोई अर्जेंसी नहीं है, तुम्हारे पास कोई बताने वाला है, जैसे एक जॉब में तुम्हारा बॉस होता है, तुम्हारी एचआर मैनेजर वगैरह वगैरह, जो तुमको कॉन्स्टेंटली फोर्स करते रहते हैं काम निकालो, काम करो वगैरह। तो बिकॉज़ तुम घर पे हो, तुमको कोई बोलने वाला नहीं है, तुम एकदम कंफर्टेबल हो, और तो फिर तुम वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो कि आज काम नहीं करते हैं, कल कर लेंगे। और अगर ऐसे प्रोक्रास्टिनेशन चलता रहा और ऐसे तुम्हारा फोकस हिलता रहा, देन फिर सब कुछ तुम लाइक डिस्ट्रॉय कर दोगे, तुम्हारा करियर तुम अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो ये भी एक दिक्कत है, प्रोडक्टिविटी की दिक्कत, काम करने की दिक्कत, मोटिवेशन की दिक्कत,
एंड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की दिक्कत। मैं अभी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हर एक चीज़ के बारे में, बट देयर आर लिटरली deep things in every single point, every single step of this journey. That's one reason why I'm switching from freelancing to a job, and then I'll switch my onto again freelancing or kind of a business. First, I think I'll start as a freelancer, but then maybe business or something. But the freelancing or entrepreneurship kind of thing, I'll start there after job. And this job wala period should be like around it. It's not about the timing, it's about the it's not about the timing, it's about the money you have in your account, the finances you have in your account. Like minimum 5 to 10 lakhs मेरे मेरे हिसाब से, लाइक मेरी कंडीशन के हिसाब से मिनिमम 5 to 10 lakhs or 10 to 20 lakhs in your account. That's first thing that you need. That's the first fucking thing that you should have. तुम कैसे भी करो, कितना भी वक्त लगे, सफरिंग हो रहा है तो हो रहा है, जॉब में कितना भी वक्त घिसाना पड़े, कुछ भी करके सेव करना पड़े, या कोई दूसरा काम करके वो पैसा सेव करना पड़े, वॉट एवर द फक you need to do it and save the fucking money. That's first thing. And then this proof of concept, it's second thing. उसमें सबसे मेन चीज़ ये आता है तुम्हारा, that you have your own kind of personal brand, kind of marketing place. I would say your personal brand. इतना तुमने कर लिया, देन फिर लाइक इट्स ओके कि तुम जॉब क्विट कर रहे हो और उसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा। आई थिंक मिनिमम 5 to 10 years या फिर अराउंड 5 years के अराउंड तुमको वक्त लग जाएगा। अगर तुम स्मार्टली प्ले कर रहे हो तो फिर अराउंड 5 years के अराउंड लग जाएगा तुमको, एंड इसके आसपास तुमको लाइक तुम्हारी सैलरी भी अच्छी खासी इंक्रीज हो रही होगी और बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में सॉर्ट आउट दिखेंगी तुमको, सॉर्ट आउट होते हुए बहुत सारी चीज़ें, और तुम हैप्पी हैप्पी रहोगे वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा। अ, और यहाँ पे अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दैट यू डोंट फॉरगेट अबाउट योर मेन पर्पस, मेन गोल एंड मेन रीजंस व्हाई यू started this job thing in the first place, not freelancing, why you switch from freelancing to a job. So it's it's fucking important that you realize, because I have already done this thing before. I was already working in freelancing, then I switched into a job, and I just fucking forget that, oh, okay, these are the problems I'm having. So what happened in my life, that I was started as freelancer, then I switched onto a job forcefully, uh, because of my situation. Then I again switched onto kind of a remote work, because of my job, like my boss forced me to do that. And then again, I I was I was in trouble in like in remote work, so I again switched onto on-site job, offline job, and then I again quit the job and then switch into into freelancing, and now I'm again switching onto a job. So it's important for you to actually realize and know the reasons why you are going into a job, why you should have to do a job, why you have to do a job. And then if you then when you have already solved every single problem, like the basic fundamental problems, then you can uh, quit your job and start working on your thing. It's important. And yes, this is, and the i I told you about the motivation problem, the work problem, the productivity problem, the consistency problem. This, I mean, this is fucking a big problem. So you have to know that how to solve problems and
how to actually handle problems, how to actually handle worst conditions, worst situations, because business is mainly about solving worst conditions, worst situations coming up in your life, in your way, and it's going to happen. So ये करना, एंड सो अभी के लिए तो मैं आई एम गोइंग इनटू अ जॉब जहाँ पे मैं अच्छा खासा वक्त के लिए काम करूँगा, जहाँ पे मुझे अच्छा खासा एक्सेल करना होगा खुद को इन टर्म्स ऑफ माय स्किल्स एंड so many in terms of my skills on so many levels, on so many areas. उसके उसके साइड बाय साइड, लाइक मेनली प्राइमरीली तुम पैसा सेव कर रहे हो एक्स वाई जेड, लाइक अराउंड 10 lakhs 20 lakhs का अराउंड तुम पैसा सेव कर रहे हो, एक्सट्रीमली सेविंग्स कर रहे हो। उसके ऊपर से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी रख रहे हो कि बहुत सारी लाइक स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में और एफडीज में तुम्हारा सेविंग्स पड़ा हुआ है अच्छा खासा। वो भी हो सकता है शायद 10 lakhs या उसके आसपास। एंड देन फिर तुम स्टार्ट कर रहे हो अपना खुद का फ्रीलांसिंग करियर और थिंग। और इसके पहले तुमने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर चुका है तुम्हारा एवरी सिंगल स्किल एरियाज, एवरी सिंगल स्किल एरिया जो रिक्वायर्ड है, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एवरीथिंग, लाइक एवरी सिंगल फकिंग थिंग तुम सॉर्ट आउट कर चुके हो। उसके बाद तुम वो क्विट कर रहे हो और अपना खुद का फ्रीलांसिंग थिंग स्टार्ट कर रहे हो। उसके ऊपर भी तुमने सोचा हुआ है दैट लाइक लाइक चीज़ी क्वेश्चन कि तुम 5 साल में या फिर 5 साल में या 10 साल में खुद को कहाँ देखते हो फ्रॉम थ्रू दिस रूट, लाइक थ्रू दिस फ्रीलांसिंग रूट, कहाँ देखते हो तुम, कहाँ पे देखते हो तुम। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम इतनी सारी डायनेमिक्स, इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोच के आगे जा रहे हो, यही बताना था मुझे। एंड आई नो कि शायद मैंने मैसअप करा है, कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। आई डोंट आई डोंट नो कि ये इंटरेस्टिंग होगा तुम्हारे लिए इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग और नॉट, बट आई होप you get something great, you get something important, useful from this conversation, from this uh, topic, from this discussion. एंड इसके ऊपर, इसके डीप डाउन जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर I'll try to like make particular videos on particular topics. uh, yeah, that's it, that's my time, and peace out.